server. Cool. Chat. Show chat previews. All right. All right, guys. So I hope you guys have all gone over the first video. If you haven't, I suggest that you most definitely do. That is what I discussed in the first lesson is it's not really related to option trading as much as related to trading overall. Let me just do a little bit of a recap of what we did in that last video. We talked about the concept of edge. you know a trade with positive edge means it will make money if you do it enough times. you know you should not expect to win on every trade. What we care about is that we make money in the long run. In the long run, short term good luck and short term bad luck will even out, and you'll be left with your average profit per trade. If that is greater than zero, then you have edge, right? So positive edge. Positive edge means your trading strategy will make money if you do it enough times. If you take enough trades, you will make money, right? We let me just see meeting group chat. So we talked about that concept. We looked at a biased coin. We looked at this coin tosser game where we looked at a biased coin. Usually a coin is 50-50, but we looked at a biased coin and we thought, okay, chalo bhai, let's give heads a 60% chance. And what you saw was like single tosses will lead to losses, right? Like there will be times when you do a single toss and tails aa gaya, even though the probability of heads is 60%, tails is 40%. But then what we saw was that as we increased our number of tosses, let's say we toss it 1,000 times, toss it 10,000 times with a 60% chance of coming heads, then our proportion of heads to tails kept getting closer and closer to the theoretical value, which is 60%, right? 60% of the times I should be seeing heads and 40% of the times we should be seeing tails. So then I asked you guys this one question, if I have 1 lakh of capital and I'm playing this coin tossing game where the chance of heads is 60% and you win 1 rupee every time. Actually, let me rephrase this, right? I have 1 lakh of capital. We're playing a coin tossing game where you win every time you toss a heads. The probability of heads is 60%. Now, either you're given two options. One is you get only one toss and you need to bet your entire 1 lakh on that one toss. And then the second option is you get 1 lakh tosses where you're betting 1 rupee each, right? You win 1 rupee if it's heads, you lose 1 rupee if it's tails. The other way around, you win 1 lakh rupees if it's heads, you lose 1 lakh rupees if it's tails. And between the first option where you're betting 1 lakh rupees in the first go versus the second option where you're only betting 1 rupee, but you're betting it 1 lakh times, what is preferable, the first one or the second one? Maybe I should put this in front of a slide, so that you guys can actually read. Let me do that actually. So that's exactly right, Tanmay. So can you guys not uh can you guys not put a chat in the general room? It's all coming to me personally. Meeting group chat. Maybe I'm the only one who can chat here. Let me change that. Host tools. Allow participants to chat. Collaborate. Remove participants. No. Let me just make it very obvious one sec, guys. I'm not sure why chatting is not enabled for everybody. So
हाँ, तो बेसिकली 1 लाख ऑफ कैपिटल है हमारे पास, कॉइन टॉसिंग गेम हम खेल रहे हैं, वेर यू विन एवरी टाइम यू टॉस अ हेड्स एंड यू लूज, you win every time you toss a heads and you lose, of course, if it's a tails. Your probability of a heads is 60%. And game one is you're only playing it once. You win 1 lakh if head shows up, you lose 1 lakh if tail shows up. The other one is you get to play the game 1 lakh times, but you're only betting 1 rupee each time. So you win 1 rupee every time head shows up and you lose 1 rupee every time tail shows up. Right. So between these two, what we saw in our coin tossing example was um, that you're better off playing this game, the second game. Okay, because um, the trade has edge. The game has edge. You have a 60% winning chance versus a 40% losing chance. And the more trades you put on, the better is the chance of short term bad luck not affecting you, and in the long run you making money. And this sort of segues into our concept of betting size, right? So we also talked about um, even if we have edge, our ending total return is quite sensitive to how aggressively we bet, right? So I think one of you guys, I think it was Jitesh, did a really good job of doing the homework and just extrapolating my example into a curve, and this was the curve. So let me just share Jitesh's solution only on Discord. So you notice, as you start getting more and more aggressive, your return starts getting lower and lower. So there is a point where it peaks, and then after that it's just down, 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 right? So, and this is the case with every trading strategy. Um, in this case, the trading strategy had edge, where um, the first time around you lost 50%, the second time around you made 75%. So um, think of this as just so you're making money in total percent returns over here, right? 50% loss, 75% win. But how aggressively you size this is determining how much capital you're left with. And this is true with any sort of trading strategy where the PNL of that trading strategy, the different trades that you take of that trading strategy, um, some will be profits, some will be losses, and you need to be able to. And overall, it could be that the trade had or the trading strategy had edge, where there was some statistical advantage in that particular trading strategy, but because you were betting too aggressively, you lost. So in our heads and tails example, um, let me share that again. So in my heads and tails example, you guys can see my screen. So the first time around, I'm betting too aggressively. I'm saying, you know what, I'll play only once, I'll bet my entire 1 lakh capital. And what happens if a tail shows up? You lose, right? The second time around, I'm being smart about how I bet, right? It's some other, this is some point on that curve where I'm like, okay, I have edge, but I'm going to bet conservatively because I can have bad luck, right? There are things I don't control. I have an advantage, but there are things that I don't control. So um, I'm going to bet not very aggressively. And these are like very fundamental concepts of trading. Before you start thinking about options, stocks, anything, right? If you're trading, you need to think about it this way, that I need to have edge, and then I need to bet accordingly. So अब आ जाते हैं next point पे. Okay, so and I also showed you guys, the Monte Carlo tool, if you guys remember, on Algo Test Strategy Builder, right? So the Monte Carlo tool
was essentially, I essentially showed you that, with different values of IV and RV, um, you plug in different RVs, realized volatilities, with long straddle, short straddle, etc. And um, what you got was, when we ran those simulations, those 10,000 simulations, which is essentially taking the trade 10,000 times, what we saw was that our average PNL fluctuates based on what the IV is at which we bought or sold the options, and what the RV is, the subsequent RV is over the life of the option, right? So these two are these magic numbers, where all of option trading can actually just be boiled down to this, IV and RV. Even in the case of, when you're buying a call, you may think your PNL is driven by whether the stock will go up, right? If the stock goes up, you're long a call, you're going to make money. But actually, when you take this trade thousands of times, your PNL is actually driven by just these two magic numbers, IV and RV, right? Um, so why am I telling you this? As what I've noticed is, retail traders don't really spend a lot of time trying to understand the dynamics of what actually drives the prices of options, right? It's more just, भैया इंडिकेटर लगाया, ऑप्शन पे खरीदो बेचो, हम ऑप्शन सेलर हैं, हम ऑप्शन बायर हैं. But professional option traders, actually, they don't care if the market goes up or down. They only care about the difference between IV and RV. They only care about कितने सस्ते IV में हम खरीद रहे हैं, कितने महंगे IV में हम बेच रहे हैं, राइट? माल सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है. तो मुझसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कि भैया आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो. तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, ठीक है ना? जो नाइव रिटेल ट्रेडर है, वो बोलेगा यार मेरा लेस कैपिटल है तो मैं ऑप्शन बायर हूँ. जो जिसका ज़्यादा कैपिटल है, वो बोलेगा अरे मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ तो मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, राइट? जो वॉलेटिलिटी ट्रेडर है, जो एक्चुअल प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर है, वो ये बोलेगा भाई अगर ऑप्शन सस्ता है तो मैं खरीदूंगा, अगर ऑप्शन महंगा है तो मैं बेचूंगा. एंड वो सस्ती और महंगाई की पहचान उसको मिलती है आईवी से, आईवी एंड आरवी से, आईवी एंड आरवी से, ठीक है? तो अब हमारा गोल है, सो मी एज एन ऑप्शन ट्रेडर, इवन इफ आई हैव 30,000 रुपीज ऑफ कैपिटल, 40,000 रुपीज ऑफ कैपिटल, I would be indifferent between option buying and selling. When options are cheap, you buy them. When options are expensive, you sell them. Yes, selling options requires more margin, but there are structures that you can create where a specific option that is overpriced, you can sell that, and then you can buy options nearby it which are underpriced. राइट? तो उसमें आपका मार्जिन भी ऐसा नहीं होएगा कि भाई लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो अगर आप इस लेंस से देखना शुरू करोगे मार्केट को, द लेंस ऑफ ए प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर, वी डोंट केयर इफ यूर ऑप्शन बायर्स और सेलर्स, वी बाय व्हेन इट्स चीप, वी सेल व्हेन इट्स एक्सपेंसिव. धंधा करते हो तो धंधा में भी यही होता है ना, माल सस्ते में लेना है, महंगे में बेचना है. वही वही माइंडसेट हमने लेके चलना है. एंड उस चीपनेस और एक्सपेंसिवनेस की जो पहचान है, दैट इज व्हाट वी गेट with IV and RV, right? So these are our two magic numbers that drive our PNL, and this is something that all you guys need to do, where you guys go to the strategy builder, you open the simulator and you play around with this number. RV, IV तुमको मार्केट दे रही है, राइट? जो भी तुम बाय सेल कर रहे हो. लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, व्हाई नॉट? ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बोला चल यार स्ट्रैडल बेचते हैं. ये स्ट्रैडल बेचा मैंने, ये निफ्टी का वीकली ऑप्शन है,
और फिर मैंने बोला चल भाई मोंटे कार्लो पे आते हैं और बोलते हैं चल 11.1 की मेरी आईवी है। लेट्स से कि आरवी मेरी एक्चुअली 15 ही रही। ठीक है, तो इसमें मुझको मार पड़ेगी, मेरे को लॉस लगेगा। ठीक है, आईवी आरवी। और अगर ये अब मेरा नंबर 11 से कम हो जाता है, 10 में करके फिर 10,000 बार ट्रेड लेता हूँ, ये अब मेरा नंबर पॉजिटिव हो गया। राइट। ये इवन इन द केस ऑफ जस्ट बाइंग अ सिंपल कॉल। ठीक है, हमको सिखाया जाता है भैया कॉल ले रहे हो, मार्केट ऊपर जाएगी तुम पैसे कमाओगे। राइट, वो एक सिंगल ट्रेड की एवोल्यूशन है। बट अगर मैंने इस ट्रेड को 1,000 बार लेना है, कॉल खरीदनी है मैंने, तो मैं जितनी सस्ती कॉल खरीदूंगा, मैंने 11 पे खरीदी है, 15, अगर मार्केट 15 देती है मेरे को आरवी में, एंड ये वील गो इन टू वट आईवी एंड आरवी एक्चुअली मीन्स। राइट, तो आज का मेरा लेसन प्लान यही है, मैं तुमको समझाना चाहता हूँ कि आईवी क्या है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम बिल्ड करेंगे आईवी। आईवी क्या होती है, फिर नेक्स्ट लेसन में हम आरवी बोलेंगे आरवी क्या होता है। एक बार हम आईवी और आरवी समझ जाते हैं डीपली, राइट, फिर हम पहचान कर सकते हैं कि भैया कब सस्ता है कब महंगा है, कब आईवी सस्ती है कब आईवी महंगी है। तो सेम सेम हम ये गेम खेलते हैं कि चल भाई 15, मैंने कॉल खरीदी आईवी 11 पे, मेरी रियलाइज वॉलेटिलिटी आरवी रही 15, मैंने रन किया, मेरा एवरेज प्रॉफिट पॉजिटिव है। मैं इसी को अगर 10 कर देता हूँ, मेरा एवरेज प्रॉफिट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो कोई परवाह नहीं है मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, उससे मेरे को कोई परवाह ही नहीं है। मेरा जो एक्चुअल ड्राइवर ऑफ पीएनएल इज दिस नंबर। ठीक है, एवरीथिंग एल्स इज नॉइज in these 10,000 evolution, in these 10,000 trades that we are taking. In some trades the market will go up, in other trades the market will go down. Obviously I will make money in the trades where the market went up because I'm long a call, right? But that is an artifact of um, basically कितनी बार मार्केट ऊपर जाएगी एंड कितनी ज्यादा ऊपर जाएगी, दैट इज ड्रिवन बाय दिस नंबर, दिस आरवी नंबर। ठीक है ना, एंड बिकॉज दैट इज वॉट ड्राइविंग माई पीएनएल, कि भाई 10,000 बार मैं कर रहा हूँ, कितनी बार वो ऊपर क्लोज होती है एंड कितनी ज्यादा ऊपर क्लोज होती है। मैं यहाँ पे देखो, मुझको 24,000 का भी प्रॉफिट हुआ हुआ है। ठीक है, आ, यहाँ पे देते हैं 3600 के उसमें कैपिटल में मुझको, मोंटे कार्लो पे आते हैं फिर से, 24,000 का भी प्रॉफिट हुआ हुआ है। ठीक है, सो दैट ऑल्सो मैटर्स एंड दिस नंबर इज ड्रिवन बाय कि कितना मैक्सिमम जा सकता है, ये भी आरवी से डिटर्मिन होता है। यहाँ पे मैं इसको 20 कर देता हूँ, भाई मार्केट बहुत मूव करी, मेरा एवरेज प्रॉफिट और भी बढ़ गया एंड 63,000 तक आ गए थे मेरे पास। लाइक देयर वाज 1% चांस दैट दिस 0.01% चांस दैट दिस ऑल्सो हैपन। राइट, सो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट गाइस, ये दो मेरे मैजिक नंबर्स हैं आईवी एंड आरवी। इन्हीं इन्हीं पे हम फोकस करेंगे, बिकॉज लॉन्ग रन में मेरा पीएनएल इसी पे डिपेंड करता है। ओके ओके, नेक्स्ट पकड़ें कुछ। स्क्रीन शेयरिंग, यही स्क्रीन शेयरिंग क्या हो रही है, यही हो रही है। सो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आईवी, आज का लेसन इज आईवी। तो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आईवी, आप सबको पता होना चाहिए कि कोई एक ऐसी चीज होती है जिसको ब्लैक शोल्स मॉडल बोलते हैं। ठीक है, BSM मॉडल, ब्लैक शोल्स मर्टन मॉडल, ब्लैक शोल्स मॉडल। You guys should know that there is something known as this. ठीक है, I'm not asking you to learn what it is, I'm not asking you to do the maths about it, but there is an option pricing model कि भैया ऑप्शन का प्राइस कहाँ से आता है। अगर हमको पहचान करनी है कि कब ऑप्शन सस्ता है कब ऑप्शन महंगा है, हमको पता करना है कि भाई ये प्राइस कहाँ से आ रही है ऑप्शन की। ठीक है ना, तो उसके लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्लैक शोज मॉडल क्या होता है। सो लेट मी जस्ट ओपन अप विकीपीडिया, मैंने खोल रखा है क्या यहाँ पे, ब्लैक शोज ही है क्या इसमें, ब्लैक शोज मॉडल। विकीपीडिया पे जाओ, ब्लैक शोज मॉडल सर्च करो, बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स दिखेगी, कोई दिमाग नहीं लगाना उस कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स में। सिंपल सा आपको ये समझना है कि ये एक फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला। let me find where the final formula is. The formula looks complex, but it's actually it boils down to something very simple. कहाँ गया मेरा फॉर्मूला, ये कॉल की प्राइस जो है वो इसने इस फॉर्मूला में डाल रखी है। बट हमको एज ट्रेडर्स, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डेंट नो, आई हैव अ क्वांट बैकग्राउंड, बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम I traded even before having a quant background, and I just knew that something like this exists, and I just knew how to use it. तो ये जीरो था का ऑप्शन कैलकुलेटर है, ब्लैक शोल्स कैलकुलेटर है। ठीक है, ये बस हमको ये बता रहा है
कि यार अंडरलाइंग प्राइस क्या है, मतलब ऑप्शन की प्राइस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो आपके सामने है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन की प्राइस डिपेंड करती है कि भैया अंडरलाइंग क्या कर रहा है। निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी निफ्टी के ही ऑप्शन को प्राइस करते हैं गाइस, लेट्स डू इट टुगेदर। ठीक है, निफ्टी आज क्रेजी वॉलेटाइल डे, 24,781। सो 24,781 यहाँ डाल देते हैं हम, 24,781। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस, कौन सी स्ट्राइक प्राइस को करेंगे इस, इसी को करते हैं, 24,800 की स्ट्राइक को करते हैं। 24,800 की मेरी स्ट्राइक प्राइस हो गई। एक्सपायरी कब की है इसकी, इसकी एक्सपायरी है 19 दिसंबर। लेट्स डू 19 दिसंबर। टाइम ये रहने देते हैं। वॉलेटिलिटी क्या होती है हमको पता नहीं अभी, राइट, तो यही इसी को हमने डिस्कस करना है। तो इसको मैं अभी बोलता हूँ, चल कुछ भी नहीं है। um, अभी इसको ब्लैंक रखते हैं। फिर आ जाता है इंटरेस्ट रेट और डिविडेंड। तो हम क्या करते हैं गाइस, हम इन दोनों को जीरो रख देंगे। ठीक है, एंड इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि मैं स्पॉट की जगह यहाँ पे सिंथेटिक फ्यूचर डाल दूंगा। तो मैं बोलूंगा चल भाई मेरा सिंथेटिक फ्यूचर जो है, मतलब इसमें भी मतलब इतना दिमाग मत सोचो कि सिंथेटिक फ्यूचर क्या बोल दिया इसने। बस ये सोचो कि ये एक नंबर है। मैं बोलता हूँ कि यार मेरा अगर स्पॉट स्पॉट प्राइस मेरी ये है, निफ्टी का ये भाव है, तो अगर मेरा 19 दिसंबर को एक फ्यूचर एक्सपायर हो रहा होता, उसका क्या भाव होता, वो ही है। हमको पता है कि फ्यूचर भी ट्रेड होता है, राइट, ये, लेकिन फ्यूचर की एक्सपायरी कब है, 26 दिसंबर की एक्सपायरी है। तो हम बोलते हैं कि यार अगर 19 दिसंबर को कोई फ्यूचर एक्सपायर कर रहा होता, तो उसका क्या भाव होता, उसका भाव होता सिंथेटिक फ्यूचर जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम यही वाला डालेंगे, 24806 डालेंगे यहाँ पे। लेट्स डू दैट, 24806, 11.1 डालें क्या, आ गया। ठीक है, तो अब ये मेरा ब्लैक शोल्स मॉडल है, बहुत सिंपल सा मॉडल है। मैं यहाँ पे सिंथेटिक फ्यूचर की भाव डालूंगा। एंड गाइस जस्ट पुट इट इन द चैट अगर कुछ समझ नहीं आता तुमको, ठीक है ना, आई एम हैप्पी टू स्टॉप, स्लो डाउन, वट। आम, तो यहाँ पे मैंने सिंथेटिक फ्यूचर डाला, यहाँ पे मैंने स्ट्राइक डाली, यहाँ पे मैंने एक्सपायरी डाली। इन दोनों को मैंने जीरो कर दी, और मैंने वॉलेटिलिटी का 11.1 नंबर डाला। वो क्यों डाला मैं बाद में बताता हूँ, बट वो मैंने डाला। मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास कॉल की प्राइस आ गई और पुट की प्राइस आ गई है। ठीक है, ये लिटरली एक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर जो होता है ना, कैलकुलेटर में तुमने दो नंबर्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो तुम दो नंबर्स को इनपुट देते हो, मैंने 10 और 5 को ऐड करना है, तो ये दो मेरे इनपुट्स हैं, 10 एंड 5। इनको मैंने ऐड करना है, आउटपुट क्या आता है, 15। ठीक है, तो कैलकुलेटर क्या करता है, नंबर्स को इनपुट में लेता है और आउटपुट में आपको एक नंबर देता है, राइट। बेसिकली एडिशन का फंक्शन जो है वो मैंने आपको डिस्क्राइब किया अभी, कि मैंने दो नंबर्स इनपुट लिए और एक नंबर मेरा बाहर आया। मैंने 10 और 5 को इनपुट लिया, 15 मेरा बाहर आया। मैं 10 इंटू 5 करूंगा तो 50 मेरा नंबर बाहर आएगा। अब मेरा दूसरा फंक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन हो गया। तो आपको ब्लैक शोल्स मॉडल को भी बस एक फंक्शन की तरह समझना है, कि भाई इसमें मैं कुछ डालूंगा, कुछ 5 नंबर मैं इसमें डालूंगा और एक नंबर मेरा वापस आएगा, या दो नंबर मेरे वापस बाहर आएंगे। एक कॉल की प्राइस वापस बाहर आएगी और पुट की प्राइस मेरी वापस बाहर आएगी। ठीक है, दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक अबाउट, uh, that's how you need to think about uh, this black shows model. Like you don't need to look at the complicated math behind it. वो फॉर्मूले पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इंटरेस्ट है तो कर सकते हो, अगर थोड़ा बैकग्राउंड है इस चीज में तो कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग है, बट यू डोंट नीड दैट टू एक्चुअली ट्रेड सक्सेसफुली। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि दीज आर माई इनपुट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये पता है हमको कि भाई मैंने बता दिया सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है, कि अगर आज की डेट पे ट्रेड हो रहा होता, तो फ्यूचर अगर 19 दिसंबर का कोई फ्यूचर होता, तो उसका ये भाव होता। वो एल्गो टेस्ट आपके लिए कैलकुलेट करके दे ही देता है। तो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट दैट। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ दैट्स कैलकुलेटेड, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, राइट। स्ट्राइक प्राइस हमको पता ही है, तो मतलब यहाँ पे आप स्पॉट प्राइस भी डाल सकते हो, यहाँ पे हम निफ्टी का भाव भी डाल सकते हो, रिजल्ट इतना बदलेगा नहीं। ये स्ट्राइक प्राइस हमको पता ही, ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, एक्सपायरी भी हमको पता है क्या है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट और डिविडेंड हम जीरो रखते हैं, क्योंकि हम सिंथेटिक फ्यूचर यूज कर रहे हैं। तो ये बस एक नोन चीज है, आपको भी यही करना है। अगर आप फ्यूचर या सिंथेटिक फ्यूचर डाल रहे हैं यहाँ पे, उसका भाव डाल रहे हैं, तो इसको आपको जीरो रखना है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, फिर आ जाती है बात, ये वॉलेटिलिटी क्या है, वॉलेटिलिटी एज एन इनपुट क्या है। ठीक है, एंड ये
इसकी कैलकुलेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम करेंगे, राइट। बट ये एसेंशियली एक रिप्रेजेंटेशन है कि भैया मार्केट ओवर द लाइफ ऑफ द ऑप्शन, मेरा ऑप्शन अब 19 तारीख को एक्सपायर कर रहा है, आज 13 तारीख है, कि अगले 6 दिन में मार्केट, निफ्टी स्पेसिफिकली, क्योंकि निफ्टी पे ऑप्शन है, निफ्टी कितनी वॉलेटाइल होगी, हाउ वॉलेटाइल विल निफ्टी बी ओवर द नेक्स्ट 6 डेज। दिस इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स दैट। ठीक है, तो अब दिक्कत ये है कि हमको ये नंबर नहीं दिखता, हमको मार्केट में प्राइस दिखती है। ठीक है, हमको मार्केट में प्राइस दिखती है, एंड उस प्राइस के बेसिस पे हम ये नंबर कैलकुलेट करते हैं। कैसे? वही एडिशन वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, सो यहीं पे मैं डालता हूं एडिशन वाला एग्जांपल। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, लेट मी शेयर दिस। यू कैन सी माय स्क्रीन। तो अब है मेरा दो नंबर्स हैं, ए एंड बी। ठीक है, इनको मैं ऐड करता हूं तो मेरा सम आता है। ठीक है ना, अब ए है मेरे पास 10, बी है मेरे पास 5, एंड इनका सम है जिसको हम बोलते हैं एस, वो है ए प्लस बी इक्वल्स टू 15, राइट। अब अगर मुझको किसी ने एस दिया हुआ है और मुझको किसी ने ए दिया हुआ है, तो मैं बी निकाल सकता हूं ना। बी क्या हो गया मेरा? बी हो गया एस माइनस ए। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं है गाइज, ये बहुत ही सिंपल मैथ्स है। ये क्लास 2 क्लास 1 की मैथ्स है। ठीक है ना, तो मेरे पास एस है और ए है, तो मैं बी निकाल सकता हूँ। चैट किया किसी ने? यस आदिल, एब्सोल्युटली, द रिकॉर्डिंग विल बी देयर। तो बेसिकली यही चीज हो रही है ब्लैक शोज मॉडल में। वापस आते हैं स्क्रीन पे। तो ब्लैक शोज मॉडल में मेरे पास आई हैव ऑल दीज पैरामीटर्स दैट आर इनपुट्स टू माय फंक्शन, राइट। सो लेट्स कम बैक हियर। उप्स। ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू दिस गाय। एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ चल यार, तो एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे होती है, तो ये मैं आपके साथ ही करता हूँ अभी। तो मुझे पता नहीं वॉलेटिलिटी क्या है, मुझको प्राइस दिख रही है। ठीक है, मार्केट में मुझको प्राइस दिख रही है। प्राइस कैसे आती है? डिमांड सप्लाई से। अगर बहुत सारे बायर्स हैं तो प्राइस बढ़ेगी, बहुत सारे सेलर्स हैं प्राइस घटेगी, राइट। जहाँ पे वो मीट करते हैं डिमांड सप्लाई, वहाँ पे ट्रेड होती है। एंड दैट इज माई मार्केट प्राइस, दैट इज माई एलटीपी, एंड दैट इज माई एक्सेप्टेड प्राइस, राइट। तो प्राइस हम ऑब्जर्व करते हैं, एनएससी हमको देती है एलटीपी, एलटीपी फ्लेकर करती है वो, राइट। तो हमको दिखा कि यार एलटीपी इसकी 144 रुपीज है। एंड बाकी सारे पैरामीटर्स मुझको पता है, मुझे सिंथेटिक फ्यूचर पता है, मुझे इसकी एक्सपायरी पता है, मुझे पता है कि इंटरेस्ट रेट और डिविडेंड में जीरो रख रहा हूँ क्योंकि मैं सिंथेटिक फ्यूचर यूज कर रहा हूँ। तो सारे पैरामीटर मेरे को पता है, स्ट्राइक भी पता है मेरे को, मुझको ये नहीं पता वॉलेटिलिटी क्या है। तो वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया अभी कि आपको अगर एस इक्वल्स टू ए प्लस बी, आपको एस पता है, ए पता है, तो आप बी निकाल सकते हो। इसमें हम कैसे करते हैं? हम इटरेटिवली कैलकुलेट करते हैं। हम बोलते हैं चल यार पहले 20 वॉलिडिटी डाल के देखते हैं। मैं ये एक्चुअली आईवी कैलकुलेट करने का एल्गोरिथम है जो मैं हाथ से करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने 20 की आईवी डाली तो मुझको दिखा 256 रुपए। मैं वापस यहाँ पे मैंने बोला इसका तो यार 144 रुपीज है इसका तो। ठीक है, तो इससे कम है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा चल ठीक है, इसको 10 10 डाल के देखते हैं। 10 डाला मैंने, 129 रुपीज। 129 को मैंने इससे कंपेयर किया, मैंने बोला अच्छा ये 144 है, वो 129 है, तो 10 से ऊपर होएगा। को बोलते हैं चलो भाई, लेट्स इंक्रीज इट। आई इंक्रीज इट टू 12। 12 में दिखा रहा है 155 वर्सेज 144। लेट्स ब्रिंग इट टू 11। अब आ गया 142, 142 वर्सेज 144, सो आई एम गेटिंग क्लोजर, राइट। तो ये जो 11.1 है, हम चीट करके बोल सकते हैं चल भाई 11.1 है। तो एसेंशियली आप ये देख रहे हैं कि जब मैं वॉलेटिलिटी बढ़ाता हूँ गाइस, जब मैं वॉलेटिलिटी बढ़ाता हूँ तो कॉल का भाव बढ़ जाता है, पुट का भाव भी बढ़ जाता है। जब मैं वॉलेटिलिटी घटाता हूँ तो कॉल का भाव भी घट जाता है, पुट का भाव भी घट जाता है। दिस इज वेरी फंडामेंटल। दिस इज एसेंशियली जो हम आरवी वाला नंबर इनपुट कर रहे थे मोंटे कार्लो में, राइट। ये वही नंबर, उसी नंबर, बोथ दीज नंबर्स मीन और दे ट्राई टू मीन द सेम थिंग, राइट। अगर मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी तो ऑप्शन ज्यादा महंगे होंगे,
अगर मार्केट में कम वॉलेटिलिटी होगी तो ऑप्शंस कम, मतलब कम महंगे होंगे, सस्ते होंगे, राइट। तो हमको ये रूल समझना है, ये रूल हमको इंटरनलाइज करना है कि भाई वॉलेटिलिटी ज्यादा है ऑप्शन महंगे होंगे, वॉलेटिलिटी कम है ऑप्शन सस्ते होंगे। इसका जब मैं मॉन्टे कार्लो रन करता हूँ, राइट, आई पुट, मैंने ये बाई किया, मैंने यहाँ पे 11.1 देखा, मार्केट में 11.1 है, ठीक है, मार्केट में हमको प्राइस पता लगी 144, प्राइस 144 है, उसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट वॉलेटिलिटीज डाली, हमने देखा यार 20 पे कम है, 20 पे बहुत ज्यादा है प्राइस, 10 पे कम है, चलो 12 पे ट्राई करते हैं, 12 पे अभी ज़्यादा हो गई, चल 11 पे ट्राई करते हैं, 11 पे कम हो गई, चलो 11.5 करते हैं, इस पे ज़्यादा हो गई, चलो 11 पॉइंट, मतलब दिस इज हाउ द एल्गोरिथम एक्चुअली वर्क्स टू बैक आउट द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, राइट, कि मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इन दिस केस, सॉरी, सो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बेसिकली बस एक नंबर है, ठीक है, वो एक नंबर है जिसको मैं यहाँ इस ब्लैक शोल्स मॉडल में डालता हूँ, तो मेरे जो मॉडल का भाव है, मेरे मॉडल की जो प्राइस है, वो मेरे मार्केट की प्राइस को जितना क्लोजली मैच कर सकती है करेगी, ठीक है। तो ये बस एक नंबर है, एंड दिस इज, मार्केट में हमको प्राइसेस आती हैं, प्राइसेस आती हैं बिड एंड आस्क से, आप जब ऑर्डर लगाते हो उसमें आप प्राइसेस लगाते हो, एंड उस प्राइस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आईवी होती है, एंड वो आईवी हम रिकॉर्ड करते हैं, उस आईवी पे हम ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है, तो अभी गाइस लिटरली व्हाट वी हैव डन, एंड दिस इज गोना बी गुड होमवर्क फॉर यू, राइट, लाइक फाइंड सम ऑप्शन, कोई ऑप्शन का भाव, आप जो भी आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, कल कल परसों मंडे को जो भी आप ऑप्शन ट्रेड करोगे मार्केट में, बेसिकली जीरो था पे आप एट द मनी ऑप्शन की प्राइस देखना, ठीक है, और फिर उसकी आईवी कैलकुलेट करने की कोशिश करना। कैसे करोगे, ऐसे ही करोगे, ये सारी वैल्यूज आपको पता है, एल्गो टेस्ट पे आके आप एक्चुअली देख सकते हो सिंथेटिक सिंथेटिक फ्यूचर क्या चल रहा है, ठीक है, सिंथेटिक फ्यूचर प्लग इन करना, प्लग इन ऑल द वैल्यूज, प्लग इन दी आईवी हियर एज वेल, जो एल्गो टेस्ट की निकल रही है, यू कैन प्लग दिस इन एंड जस्ट गेट द मार्केट प्राइस टू मैच, ठीक है। सो दिस इज जस्ट लाइक एक, जैसे अभी मैंने इटरेटिवली कैलकुलेट किया, आप भी लाइक जस्ट प्ले अराउंड विद द ब्लैक शोल्स कैलकुलेटर एंड just to get a little bit more intuition around IV. Now the question is कि ऐसा क्या स्पेशल है IV में, like why do I care so much about IV, right? So one thing about IV is that it helps us compare different options. प्राइसेस बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं मार्केट में, मार्केट में मूव आता है, प्राइसेस बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं। आज ही आपने देखा होगा मार्केट डाउन -1.3% से अप 1% पे जाके क्लोज हुई है, राइट। तो लेट मी जस्ट ओपन द सिमुलेटर एंड लेट्स एक्चुअली लुक एट सम ऑप्शन दैट ट्रेडेड टुडे, राइट। निफ्टी पे आ जाते हैं, आज की डेट है 13 तारीख, लेट्स गो हियर। सो द मार्केट ओपन स्लाइटली डाउन, देन द मार्केट जस्ट स्टार्टेड शिटिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो मार्केट ओपनड एट 24,500, ठीक है, 24,500 पे 13.5 आईवी चल रही थी, ठीक है, एट मार्केट ओपन 24,500, गाइस लेट्स रिमेंबर दिस। नाउ एज द मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग, so let's record this 24,500 13.7 IV, let me just put that in chat so that I don't forget. All price was 166.85, ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया गया, सबने देख लिया, 24,500 की मेरी स्ट्राइक थी, 13.7 इज दी आईवी, कॉल प्राइस इज 166.85, ठीक है। एज द डे इवॉल्व, लेट्स सी, 24,500 की अब 276 की हो गई है प्राइस, 166 से शुरू हुआ था, मार्केट क्लोज पे कहाँ क्लोज हुई है, 24,500 353 रुपीज पे क्लोज हुई है, ठीक है। बट गाइज आईवी इज ओनली 12,
ठीक है. सो प्राइस हैज चेंज सिग्निफिकेंटली. प्राइस हैज नियरली डबल्ड. ठीक है. आईवी हैज ओनली फॉलन डाउन बाय 1 point. Price has more than doubled actually. So the idea about IV is, it is, एक तो prices change very very quickly. ठीक है. IV does not change as quickly as prices. So now we have something that moves slowly. Even if the market is going crazy, relatively this number is not moving very fast. ठीक है. It does not change as quickly as the prices. So naturally, if something is not moving as fast, um, it's probably easier to predict than something that's moving very very fast. Okay, and it's all about, hey, I want to be able to predict these numbers, IV and RV. If the market goes up or down, how aggressively it goes up or down, I can't predict that. Nobody can actually predict that. आपको मे बी ऑनलाइन बताते होंगे कि भाई ये इंडिकेटर से ये क्रॉसओवर होएगा तो बढ़ेगी घटेगी, बट मतलब नो प्रोफेशनल ट्रेडिंग फर्म एक्चुअली इज इन दैट बिजनेस. जेन स्ट्रीट में बंदे ट्रेडिंग व्यू चार्ट खोल के नहीं बैठे. They are heavily looking at these numbers, IV and RV, and they are coming up with forecasts for these numbers. They are not looking at moving average crossover होएगा, RSA divergence, ऐसा कुछ नहीं देख रहे लोग. ठीक है ना. So what we've done with IV is we've reduced something that moves very very fast to something that moves relatively slowly. That's one thing. ठीक है. Prices were far apart now, but the IVs are closer. So एक तो ये पॉइंट है. द सेकेंड पॉइंट इज दैट आईवीज आर समथिंग विच आर कंपेरेबल. ठीक है. सो लेट्स लुक एट अगेन. यहाँ पे मेरा 24,800 अब एट द मनी हो गया. तो 24,800 की आईवी 11.1 है. 24,300 की आईवी 13.1 है. नाउ दिस इज द सेम यूनिट. ठीक है. ये एट द मनी ऑप्शन है गाइज. आई होप एवरीबडी नोज व्हाट एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी मीन्स. ठीक है. तो ये मेरा एट द मनी ऑप्शन है. ठीक है. ये मेरा डीप इन द मनी ऑप्शन है. एंड both of these options are quite different in their properties. One is deep in the money, one is at the money. But this essentially tells me कि यार ये जो ऑप्शन है 24,300 वाला, ये थोड़ा महंगा है कंपेयर टू 24,800 वाला. क्यों? क्योंकि इसकी आईवी ज़्यादा महंगी है. सो ऑब्वियसली प्राइस तो महंगी होनी होगी. ठीक है. प्राइस इट हैज़ टू बी मोर एक्सपेंसिव बिकॉज इट इन द मनी. ठीक है. अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता ना गाइस, तो इसके लिए लाइक यू शुड डू अ लिटिल बिट मोर रीडिंग विद इन द मनी आउट ऑफ द मनी वाला कॉन्सेप्ट. राइट. आईटीएम ऑप्शन की प्राइस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द एटीएम मनी की प्राइस. ठीक है. बट आईवी नेसेसरली नीड नॉट बी. आईवी कैन बी अप और डाउन. ठीक है. तो ये इंटरेस्टिंग चीज है वेयर आई कैन नाउ कंपेयर दिस ऑप्शन, द 24,800 ऑप्शन, विद दिस ऑप्शन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर विच इज द आईवी. ठीक है. तो knowing IV tells us two things, what I've said right now, right? Um, it's slow moving. It's not moving very, very fast. So it can be observed. The second is it helps us compare different options. Like it's the same unit that I'm using to compare two different options. आप बोल सकते हो प्राइस भी सेम यूनिट है, राइट. बट प्राइस is not something that gives us a lot of insight about ये चीज महंगी है या सस्ती है. In the sense के ऑब्वियसली 528 रुपीज वर्सेज 144 रुपीज ये ज्यादा महंगा है, राइट. बट महंगा क्यों है? क्योंकि इन द मनी है. अगर महंगा ना होता तो आर्बिट्राज हो जाता, राइट. बट एक्चुअल महंगाई सस्ताई का जो ओपिनियन है वो हमको ये नंबर देता है, द आईवी नंबर. ठीक है. तो out of the two magic numbers, so let's come back to this screen. Let's come back here. Let's go back to the strategy builder. Strategy builder. तो गाइज हमको क्या समझ में आया? हमको समझ में आया है कि
आईवी इज समथिंग दैट, हमने आज क्या रिकैप किया, हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा कि यार एक ब्लैक शोज मॉडल एक चीज़ है, ठीक है, वो एक कैलकुलेटर सा है, वो एक फंक्शन है, उसमें हम इनपुट्स डालते हैं तो हमको आउटपुट मिलता है। ये हमारे इनपुट्स हैं, ठीक है, हमको ये पता नहीं होता क्या है ये वॉलेटिलिटी जो है, हमको नहीं पता होता क्या है, ठीक है, लेकिन हम मार्केट प्राइस ऑब्जर्व करके यहाँ पे इस वॉलेटिलिटी को फिगर आउट कर सकते हैं। तो मार्केट प्राइस हमने देखी, एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स डू अनदर एग्जांपल ऑफ दिस। लेट्स डू 26 दिसंबर की एक्सपायरी का नाउ, एंड लेट्स से 24 850 का ले लिया, मेरी सिंथेटिक फ्यूचर भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे आते हैं, फिर से इसको चेंज करते हैं 24850। एंड मैं इनकरेज करूंगा गाइज, आप सब ये मैन्युअली हाथ से करो, बिकॉज इंट्यूशन तभी बनेगी, अगर आप एक्चुअल होमवर्क करोगे तभी बनेगी, सिर्फ ज्ञान सुन के कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाता, एक्चुअली काम करना पड़ता है यहाँ पे। 2485। एक डाउट है। या प्लीज। सो ये जो आईवी आईसी पुट का आईवी, so it seems it is increasing. I mean the IV, if we take the lower strikes from 11.1 to it's 13.1 somewhere in 24,300, and जो नीचे का जो है, for the downward strike it is decreasing and then again increasing. So is it like there is it's like that only, or? या ग्रेट ऑब्जर्वेशन मैन, एब्सोल्युटली ग्रेट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि आईवी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ चीपनेस, मतलब आर पी एन एल इज डिटर्मिन्ड बाय ऑप्शन कितना सस्ता है कितना महंगा है, ठीक है। मार्केट में क्या ट्रेड होती है, प्राइसेस, बंदा प्राइस डालता है, बट एंड प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है, डिमांड सप्लाई से। तो मुझको ये आईवी का नंबर ये बता रहा है कि ये जो नीचे की जो पुटें हैं ना, तो नीचे की कॉल्स कम ट्रेड होती हैं, नीचे की पुटें ज्यादा ट्रेड होती हैं। तो मुझको ये इंक्रीज्ड आईवी नंबर ये बता रहा है कि गाइज नीचे की जो पुट है उसका डिमांड ज्यादा है कंपेयर टू एट द मनी पुट। पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग डाउनसाइड प्रोटेक्शन। जो आपके बैंक्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके एफ हैं, उन्होंने निफ्टी में एक्सपोजर लेके रखा है। निफ्टी के साथ वो क्या कर रहे हैं, वो नीचे की पुटें उठा के चल रहे हैं कि भाई अगर मार्केट क्रैश आएगा तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ। एंड द डिमांड फॉर दीज पुट्स, अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द डिमांड फॉर दीज पुट्स is being shown, is being manifested in this increased implied volatility। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। मे बी अनदर होमवर्क फॉर यू गाइस शुड बी कि यार क्रैश ऑफ 87 के बारे में पढ़ो। क्रैश ऑफ 87 which happened in the US market, on that particular day and the days before that all these numbers were the same। ठीक है, सारी उस टाइम पे मार्केट ऐसी होती थी कि सारी आईवीज जो होती थी वो सेम होती थी, लेकिन आफ्टर दैट these IVs started becoming more expensive, people started bidding up these downside puts, and this is something that you will see in all markets, you will see this। Let's look at Reliance for example। सेम कहानी, ठीक है, as you keep going down these puts are bid, like people are interested in buying these downside puts, these puts are expensive। So this is absolutely an observation, and what this tells us is कि भैया लोगों को डाउनसाइड प्रोटेक्शन चाहिए होती है रिलेटिव टू एट द मनी, रिलेटिव टू। अब यहाँ पे ऊपर इसलिए है क्योंकि मतलब स्टॉक है, स्टॉक कैन गो अप ऑल्सो, राइट। मार्केट, द इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन वाज ऑल्सो कि निफ्टी में, in Nifty, you're seeing that IVs are decreasing, right? As you go up, the IVs are decreasing, and then right at the end, the IVs start increasing again. So imagine, karo, guys, like in the last 15 years, 20 years, ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा नहीं हो सकता, but in the last 15 years, 20 years, overnight crash पड़े हुए हैं, लेकिन ओवरनाइट मार्केट 5% ऊपर खुली, ऐसा कभी नहीं हुआ, राइट। तो इसीलिए लोगों को पता है कि यार मैं इतने ऊपर की कॉल क्यों इतनी महंगी खरीदूं, क्योंकि यार मतलब अप 2%, अप 3%, अप 5% इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम नहीं होता। वो मार्केट ऊपर धीरे 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 जाती है। आजकल काफी अग्रेसिव मूव हो रही है ऊपर, बट फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स लाइक दिस। बट जब क्रैश आता है डाउन 5%, डाउन से वो ऐसे आता है, right? And that is why these options are more expensive, people are bidding these options up, right? So today, based on just this observation and understanding, यार ये IV जो है
ये ऊपर नीचे जाता हो तो ज्यादा हो रही है, ऊपर आता हो तो कम हो रही है. नाउ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि यार ये महंगे हैं, नीचे की जो पुटें हैं वो महंगी हैं कंपेयर टू ऊपर की कॉल्स या एट द मनी की पुट, राइट. सो Jitesh, arbitrage we'll talk about in a different lesson, but I guess if you joined the webinar जो हमने लिया था, जिसके basis पे all you guys joined this group, on the webinar I talked about inefficiencies and I talked about BSE NSE में Reliance की price, right? अगर price में difference होता है, so anything that arbitrage is anything that should never exist, that is some kind of a state today which is inconsistent with the future state of the world. So how do I simplify that? An example of arbitrage is कि यार रिलायंस ही खोलते हैं. रिलायंस का भाव यहाँ पे 1274.3. लेट्स से बीएसई में चल रहा है 1270 का एंड एनएसई में चल रहा है 1280 का. सो दैट्स एन आर्बिट्राज बिकॉज व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट अ रिस्कलेस पोजीशन, आई कैन बुक अ रिस्कलेस प्रॉफिट by selling at 1280 and buying at 1270 at the same time, right? I do that and then I've just pocketed 10 rupees. So that is what arbitrage means, that creating a position which leads to a riskless profit, right? So anyway, guys, so this is a very fundamental concept today, guys. I didn't want to start talking about RV as well today because मतलब दोनों concepts थोड़े heavy हैं, थोड़ी understanding चाहते हैं. And I also want you guys to play around with this number, play around with the Black-Scholes calculator. Take a look at some of these observations. जैसे ये आपने ऑब्जर्व करी, नीचे की ज्यादा है, ऊपर की कम है. लेट्स लुक एट सम अदर मंथ्स. आगे जाके आगे के महीनों में आईवी कैसी दिख रही है, राइट? तो जैसे अभी आईवी कम है, जैन जैन की आईवी ज्यादा है. ये क्यों है? कोई मुझे बता सकता है जैन की आईवी ज्यादा क्यों है रिलायंस में? मे बी बिकॉज कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आने वाले हैं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आने वाले हैं जिसकी वजह, दैट्स एग्जैक्टली राइट हर्षद, दैट्स एग्जैक्टली राइट. क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले हैं, दे विल प्रोबेबली हैपन बिफोर द जैन एक्सपायरी इज ओवर. तो that's why these options are more expensive because there is going to be more volatility. These options will trade more, right? Or rather, the underlying is expected to move more because of the corporate results. Exactly right. Any other questions, guys? I'm going to wrap this up. मैं थोड़ा let me just think about what homework to give you guys. ठीक है ना? After this session, I'll put that on Discord. It'll be related to IV only. Any other questions, guys? एक बेसिक क्वेश्चन है कि जैसे एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पे जैसे कॉल सपोज इन द मनी में है तो उसी स्ट्राइक का पुट ओटीएम हो जाएगा. तो उसमें जो आईवी डिस्प्ले में आ रहा है वो दोनों स्ट्राइक दोनों कॉल और पुट पे सेम ही आईवी रहेगा क्या? Yeah. So Okay. ये भी, this is also a no arbitrage principle. This is an interesting one, right? कि अगर मेरी कॉल की आईवी सेम स्ट्राइक की, सेम एक्सपायरी की, सेम अंडरलाइन की, और मेरी पुट की आईवी अगर डिफरेंट हो जाती है, तो मैं आर्बिट्राज क्रिएट कर सकता हूँ. मैं बेसिकली एक रिस्कलेस पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ. तो फंडामेंटली इनकी आईवीज हमेशा सेम रहती हैं. एंड यूजली जो भी ओटीएम ऑप्शन है ना, मेरा ओटीएम ऑप्शन ज्यादा लिक्विड रहता है. तो अगेन रिमेंबर गाइज, आईवी इज कमिंग फ्रॉम प्राइस, प्राइस इज कमिंग फ्रॉम बायर एंड सेलर, राइट? तो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस आ रहा है. तो जो ऑप्शन ज्यादा लिक्विड है, ज्यादा ट्रेड करता है, तो नीचे की पुटे ज्यादा ट्रेड करती है, ऊपर की कॉलें ज्यादा ट्रेड करती हैं, राइट? तो माई आईवी विल एक्चुअली बी डिटर्मिन्ड बाय those options. And maybe this is a homework. It's like it's a bit of an advanced concept. You don't really need to understand it as a beginner to understand what drives your PNL, but it's something to think about, right? What I'll tell you is if the IV of an option, if the IV of a call and a put of the same strike, the same underlying, the same expiry, is very important to say that these three things are the same. If the IV differs by a bit between the call and the put, then there is a opportunity for a riskless arbitrage.
तो वो कैसे किया जा सकता है नेचुरली, एक सिंपल सिंपल चीज तो सोचने वाली ये है ना, जो महंगी आई हुई है वो मैं बेच सकता हूँ, जो सस्ती आई हुई है वो मैं खरीद सकता हूँ। इट्स बिकॉज ऑफ पुट कॉल पैरिटी। तो जो महंगी आईवी वाला ऑप्शन है वो मैं बेच सकता हूँ, जो सस्ती आईवी वाला है मैं खरीद सकता हूँ, एंड कुछ और मुझको करना पड़ेगा स्टॉक के साथ, तब जाके मेरी रिस्कलेस पोजीशन बन जाएगी। इट्स अ स्लाइटली मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ जो बीएसई एनएसई का आर्बिट्राज मैंने तुमको बताया। सेम सेम चीज, सेम माल बीएसई में सस्ता है, एनएसई में महंगा है। इस केस में सेम माल मैं बना सकता हूँ, एंड मे बी दैट समथिंग, इफ यू गाइस मे बी, सो यू गाइस रीड अप ऑन इट, पुट कॉल पैरिटी के बारे में पढ़ो, वो भी एक काफी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। So that's a good homework. Let me actually just finalize the homework part right now only, right? Put call parity तुमने so read up on put call parity to answer the question of why IV. Let me share my screen so you guys can see. Why IV of call and put with same strike, underlying and expiry are the same. Why IVs of a call put same strike are the same. Second is, I want you to play around with the Black-Scholes calculator. ठीक है? Hello. Hey Tashal, sorry, can I just call you in 5 minutes? I'm just in the middle of a session. All right, bye. हाँ जी, तो ये दो तो होमवर्क हैं गाइस। पुट कॉल पैरिटी पढ़ो, आईवी के साथ थोड़ा और प्ले अराउंड करो, एंड नेक्स्ट सेशन वील टॉक अबाउट द सेकंड मैजिक नंबर विच इज आरवी। ठीक है? एनीथिंग एल्स गाइस? क्वेश्चंस? नहीं है? So can we see the if like you said the IV of may differ of the same strike price. So the difference can we see on algo test, like algo test displays only single IV. Algo test assumes there is no arbitrage in the market. Okay, Right? okay, okay. Algo test बोलता है कि तुम क्वेश्चन आता है ना, तुम सड़क पे चल रहे हो, तुम्हें 5,000 रुपए गिरे हुए दिख गए, राइट? या तुम्हें 2,000 रुपए का नोट दिख गया, अब 2,000 का तो नोट ही नहीं है, 500 रुपए का नोट तुम्हें दिख गया, राइट? तो नो आर्बिट्राज वाले बोलेंगे वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमको दिख ही नहीं सकता, क्योंकि किसी ने पिकअप कर ही लिया होगा। वो फ्री मनी कहाँ मिलती है दुनिया में, राइट? तो हम यही अज्यूम करते हैं कि मार्केट इतनी एफिशिएंट है कि फ्री मनी नहीं मिलती हमको, which is why we algo test says कि चलो we are only going to use one volatility which we are going to get from the OTM option which is more liquid. तो लाइक ये जो डिफरेंस जैसे आपने बताया, ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए डिस्प्ले हो जाता होगा और किसी ने उसको एनकैश कर लिया एंड मेक मनी आउट ऑफ इट, लाइक। या ये प्रॉप जेन स्ट्रीट प्रॉप ओके ओके काम ओके है ना, ओके। मैंने भी कर रखा है। मैं तो उस टाइम पे भी ट्रेड कर रखा है जब मतलब कीबोर्ड पे कर सकते थे, बाय कॉल ग्रेट। सेल पुट सेल फ्यूचर, जल्दी जल्दी बाय कॉल सेल पुट सेल फ्यूचर, मतलब 2006 2007 में कर रखा है। Alright guys, मैं सेशन को एंड करता हूँ। We'll do another session next week where we're going to talk about RV, and then the session after that will be, let's bring all these things together to look at when options are cheap and when options are expensive. That is the actual time when we'll have the questions. ठीक है, ठीक है, cool है। I hope today was informative. I hope I'm just share the feedback guys, please share the feedback individually, मेरे को DM भी कर सकते हो। What I'm trying to build towards is like the trade that we are going to talk about here in this
course is the trade where we say ke options are, on average, options tend to be expensive, and then how can we put trading structures on that can capture that, right? Naturally, if you can find out when options are expensive, then you should also have an opinion around when options are cheap. So that's the hope of over the next 1 month or so. Okay, by the end of it, you guys get a little bit smart about having an opinion कि भाई ये माल सस्ता है या महंगा है, एंड अगर महंगा है तो कैसे मैं ट्रेड लेके उस पर कुछ कर सकता हूँ, और अगर ये माल सस्ता है तो कैसे मैं ट्रेड लेके कुछ और कर सकता हूँ. एंड दिस इज अ वेरी वेरी की कंपोनेंट ऑफ डिटर्मिनिंग कब सस्ता है कब महंगा है माल, राइट? आईवी इज अ वेरी की कंपोनेंट ऑफ डिटर्मिनिंग दैट. तो रीड अप ऑन दिस. विक्स जो है, अनदर थिंग, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन विक्स एंड आईवी? ये भी R&D करो यार. विक्स हम देखते हैं, विक्स रिलेशनशिप बिटवीन विक्स एंड आईवी, ये भी फिगर आउट करो. इस पे भी थोड़ी R&D करो, थोड़ी रीडिंग करो, चैट जीपीटी से पूछो. ठीक है गाइस, एनीथिंग एल्स? चलो, आई एम आउट. नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन रियलाइज व्हाट आर वी. Will it be on Thank you. Fridays? Yeah, I'll try to do it this Friday only, coming Friday. Okay. मेरा यार एक इरिटेशन है, मैंने ये सेबी आरए के एग्जाम की पढ़ाई करनी है. मैंने, मेरा एग्जाम है 2 वीक्स में, तो चलो वील फाइंड टाइम, बट I'll do this 1 hour session for sure. आरवी पे, रियलाइज वॉल पे. After the RIA session, you will be launching your own this strategy. नहीं ब्रो, नॉट रियली. RA. हाँ, I'm just like, let me just become an RA, because if I give my own strategy, then I can't trade on it as an RA. That's also a rule. So Achha, that is also a rule. So shouldn't it be the contrary? Ki you should be only be able to trade on those strategies. that's the read the regulations, man. I read the regulations. They are more worried about front running, कि आप खुद खरीद रहे हो, दूसरे को बेच रहे हो. स्टॉक्स में होता है, ऑप्शंस में इतना नहीं होता. बट Options में बहुत मुश्किल है करना. बस यही कहानी है, dude. So if I'm an RA and I give strategies, then I can't trade on my own, and I don't want to do that. So, but I'll take Then the why exam. are you getting a license then? Sorry, Then why are you getting a license? मेरी एड तुमने देखी ना, उसमें मैं दिखाऊंगा सेबी रजिस्टर्ड RA दिखाऊंगा मैं फिर नेक्स्ट एड में. Achha, for that. I'm kidding, but I'm just curious. I'm just taking the exam. I'm curious to see, what. अभी मैंने पढ़ना शुरू किया, 50-60 पेजेस पढ़े हैं मैंने, 300 पेज के मैनुअल के. Let's see. Okay. I am licensed. I'm licensed in the US. वो मेरा actually expire कर गया. FINRA का मेरा license था. So I'm like, let's get the Okay. license here also. Chalo, I'm gonna bounce, guys. Enjoy your Right. Fridays. Enjoy your weekends. See you. Thanks. Bye. 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 Good night.